very big hello to all my students. Dear students, I am here with the solutions of the botany part of PT4. As you know, the topic for this is the cell unit of life and the cell cycle and the cell division. I hope आपको पता है these two are very small chapters, but every year at least 4 to 5 questions are asked. So we are going to start with the solutions. Please focus on the words. Let's start it. The very first question out here, the incorrect statement आपने देखना है incorrect out here. About the cell is, cell के बारे में incorrect क्या है? Unicellular organisms are capable of independent existence. Yes, nothing less than a cell can show independent existence. Cellular nature is the identifying feature of the living beings. So this is very correct. Cells perform all the essential functions of life. Correct है, सारा function cell ही करता है. Anything less than a complete cell, less than a complete cell, क्या क्या होता है less than a complete cell? मेरे पास cell से छोटा क्या है? Cell organelles है. And उससे छोटा मेरे पास क्या है? Cell organelles है मेरे पास. उससे छोटा क्या है? Macromolecules है. तो मैं जब start करती हूँ with the biological classification of the living beings, सबसे छोटा कौन है? Macromolecules, then is cell organelles, then is cell. ये दोनों independent existence नहीं दिखाता है. Anything less than a complete structure of a cell, do ensure लिखा है, वो does not ensure, does not, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? does not ensure. So this is a wrong statement out here. Cell is the fundamental structural and functional unit of all the living organisms. Very correct out here. So this is also correct. This is also correct. हमने पूछा incorrect. The answer for the question happens to be the C option. Next, movement of the chromatid towards the opposite pole. When I say movement, I hope you understand the word segregation, separation. तो ये मेरे पास में यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेल के अंदर क्रोमोसोम्स है. ये क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे this centromere divides, this moves to the opposite poles. ठीक है ना? कहाँ पर होता है? एनाफेज में. कैसे होता है? शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स. ऑब्वियसली ये जो मेरे पास बना है, व्हाट इज दिस? द माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर्स आर व्हाट अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर. आपको सिखा दिया था. अब आप मेरा हाथ को पकड़ोगे. आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड हैंड आउट हियर, बट क्या बोलूंगी मैं? इट इज द स्किन आउट हियर. व्हाट इज द स्किन आउट हियर? यहाँ पे स्किन किसको बोल रहे हैं? ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं. तो ये मेरे पास माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड टू द काइनेटोकोर रादर दैन द सेंट्रोमियर. तो दिस इज करेक्ट. शॉर्टनिंग हो रहा है, छोटा हो रहा है. दिस इज करेक्ट. यहाँ पर मैंने सेम डाल दिया. इलोंगेटिंग ऑफ द या इलोंगेशन ऑफ दिस हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये सेंट्रोमियर हमारे पास इलोंगेटिंग नहीं हुआ, कम हो गया. देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. Next, 93. Incorrect statement again. You are supposed to focus on incorrect out here. Chromatophores are, I hope you understand, जो हमारे पास में यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ने इन्वेजिनेशंस बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा पिगमेंट्स आ गया. किसमें? प्रोकैरियोट्स में. Chromatophores are membranous extensions into the cytoplasm. ये सेल मेम्ब्रेन से अंदर जा रहा है साइटोप्लाज्म में, of the cyanobacteria which contains pigments. तो obviously cyanobacteria right है, because cyanobacteria is a prokaryote which undergoes what? Photosynthesis. Photosynthesis करने के लिए हमारे पास normally chloroplast चाहिए, but prokaryotes के पास हमारे पास organelle नहीं होते. तो कौन है यहाँ पे? It is the chromatophores which is having the pigment, which is very correct line. ठीक है? Prokaryotes are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotes. Obviously prokaryotes छोटे होते हैं, more rapidly करते हैं, binary fission करते हैं, और binary fission में भी proper karyokinesis, cytokinesis नहीं होता है. So that means ये जल्दी कर रहा है हमारे पास. Correct. The plasma membrane of the prokaryotes is structurally dissimilar to that of the eukaryotes. I hope आप सबको पता है eukaryotes में हमारे पास plasma membrane किस चीज़ का बना है? It's made up of phospholipids and protein. And even the prokaryotes it's made up of phospholipids and protein. तो सारा living organisms on the earth, what is the cell membrane made up of? It is made up of phospholipids and this. तो ये dissimilar नहीं, similar होना चाहिए था. So ये मेरे पास wrong line आ गया. Still let's go for reading the fourth statement out here. In some bacteria glycocalyx, obviously glycocalyx है, it could be loose sheet, तो क्या बोलते हैं? slimy layer, or it may be thick or tough, what is that known as? capsule. Correct है line यहाँ पे. तो हमने पूछा which is incorrect. The answer for the question happens to be the C option.
Next, how many of the following statements are incorrect? Again, incorrect. The shape of the cell may vary with the function they perform. Is this right or wrong? अगर मेरे को confusion हो गया, याद करो वहाँ पे हमने पढ़ा था RBC जो है बाइकॉन्केव है, ऐसा बनाया. जो WBC है क्या बताया हमने? अमीबॉइड बताया. मीजोफिल सेल्स इलोंगेटेड है. तो सभी के सभी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना. तो दिस इज अ करेक्ट लाइन. नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स. यस, लॉन्गेस्ट सेल्स है. लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है? किसका है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है, विच इज अगेन अ वेरी करेक्ट लाइन. ब्लू ग्रीन एल्गी किसकी बात करें? साइनोबैक्टीरिया. आर यूकैरियोट्स? नो. व्हाट आर दीज? द प्रोकैरियोट्स. साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. हमने पूछा हाउ मेनी ऑफ दिस आर इनकरेक्ट. ये मेरे पास करेक्ट एंड दिस द ओनली वन विच इज इनकरेक्ट. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट 95. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. ठीक है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म का बताना है, कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है. पहला क्या लिखा है वर्ड में? मॉलिक्यूल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ऑब्वियसली मेम्ब्रेन का क्रॉस करना, सेल मेम्ब्रेन का, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. नॉर्मली हमारा क्या होता है? अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. व्हेन आई यूज द वर्ड अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज फ्रॉम द हाई लेवल टू द लो लेवल, हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन. बट यहाँ पे मेरे पास क्या है? अगेंस्ट. मतलब क्या बात करें? लो टू द हाई. लो टू हाई जाने में मेरे पास प्रॉब्लम होती है तो मैं टान के लेकर जाऊंगी, एनर्जी दूंगी. सो व्हाट इज दैट नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो क्या ये मेरे पास में पैसिव है? नो. पैसिव इज अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. गया यहाँ पर. एक्टिव ट्रांसपोर्ट राइट है, बट मेरे पास दो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आगे अभी रखती हूँ. ऑस्मोसिस, इट इज रॉन्ग. आउट हियर. अब मेरे पास ऑस्मोसिस भी हायर टू द लोअर कंसेंट्रेशन होता है. अब दो ऑप्शन है, इसको देखें. एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम एंड पोटेशियम पंप. डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन इज अगेन फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसेंट्रेशन. सो ये राइट है, यहाँ पे रॉन्ग है. सोडियम पोटेशियम पंप. पंप नॉर्मली हम लोग वर्ड यूज करते हैं फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे मेरे पास एनर्जी लग गया है. ठीक है, एनर्जी लग गया है मेरे पास. सो व्हाट इज दिस आउट हियर? द आंसर फॉर 95 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन आउट हियर. ठीक. 96 डायग्राम वाला क्वेश्चन है. देखो किस चीज का डायग्राम बना है. दिस इज फॉर द व्हाट? द फॉस्फोलिपिड्स और द सेल मेम्ब्रेन. ये मैंने फॉस्फोलिपिड्स बना दिया है. दिस इज फॉस्फोलिपिड. ये मेरे पास हेड होता है, ये मेरे पास टेल होता है. अगेन ये हेड है, ये टेल है. ये बीच बीच में क्या बनाया है? व्हाट आर दीज नोन एज द प्रोटीन्स, द कैरियर्स आउट हियर. बट हमारा क्वेश्चन आउट हियर इज, लेट्स टॉक अबाउट दैट. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री बिटवीन द सेल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, बोथ एनवायरमेंट्स आर एक्वस. दैट मीन्स सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है. अब to allow the separation of these aqueous environments, the region of the plasma membrane indicated, ये जो डायग्राम बनाया है क्या बता रहा है? X. What is this? This is X. ये बाहर है, this is the Y. ये बीच वाला पोर्शन है. What is this? X out here. This is X. इसको क्या बोलते हैं? बाहर वाला पोर्शन लिपिड का हेड है. It is said to be hydrophilic. और ये जो मेरे पास है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक. This is Y out here. Hydrophobic. अब देखो इसको, X is hydrophilic layer on the outer side, correct है, and Y is hydrophobic layer which is toward the inner side, very correct. X and Y are both hydrophobic. No, हमारे पास में A वाला ऑप्शन राइट है. हाइड्रोफिलिक नहीं लिख कर आया तो पोलर लिख के आ सकता है, और हाइड्रोफोबिक नहीं लिख के आया तो नॉन पोलर लिख कर आ सकता है. ठीक है ना. तो मेरे पास बाहर में, तभी तो अंदर में क्या है मेरे पास में? नॉन पोलर है, पर पानी तो अंदर जाना है तो कौन लेके जाएगा? इट इज व्हाट? इट इज अ कैरियर्स आउट हियर व्हिच आर गोइंग टू हेल्प carrying this transport out here. Fine. The answer for 96 happens to be the A option. ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकल्सन ने. चलिए, now go for this. To enter or leave a cell, the substance must pass through and dash structure. किससे पास करना पड़ेगा? सेल वॉल है कि सेल मेम्ब्रेन है? देखिए सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन लिखा है. इट हैज टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स में, मैंने बहुत सारे यूकैरियोट्स में हमारे पास सेल वॉल होती नहीं है. दैट मीन्स वो सेल वॉल इज रॉन्ग. एंड उसको जो पास करना है वो किसने एक्सप्लेन किया? सेल मेम्ब्रेन से जा रहा है. किसने एक्सप्लेन किया? नॉट द सेल थ्योरी, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो अभी मैंने आपको सिखाया, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो डायग्राम सिखाया, दैट इज आउट हियर. मैंने इस क्वेश्चन में एक और ऑप्शन डाला था, मैंने इसमें एक और ब्लैंक था यहाँ पे, ईयर ऑल्सो. तो काइंडली फोकस ऑन द ईयर. जो किस चीज़ का ईयर है? फॉर द फ्लूइड मोजाइक मॉडल के लिए और एज वेल एज द सेल थ्योरी के लिए. तो ये तीन वर्ड्स और डाल सकती. मैं दो के साथ एक और डाला था, तो आपने नोटिस करना है
थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन हो सकता है, फिर भी मैंने छोटा कर दिया आपके लिए। तो लेट्स गो फॉर इट। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस बी, दो जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पर ये सेल थ्योरी बताती, सेल थ्योरी ने नहीं बताया किससे पास होना है, किसने बताया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। दिस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ इट। द आंसर फॉर द 97 हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। 98, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्लोजली एसोसिएटेड विद द गोल्गी एपरेटस। चलो देखो, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मेरे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास में ही मेरे पास कौन है, गोल्गी एपरेटस। यहाँ पे मेरे पास गोल्गी एपरेटस है, दिस इज द गोल्गी एपरेटस, ठीक है ना, गोल्गी एपरेटस है। अब इसने एंडोप्लाज्मिक, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है, इसने वेसिकल्स बनाया, ये वेसिकल्स क्या हुआ, फ्यूज हो गया विद दिस पोर्शन जो इसकी साइड है, न्यूक्लियस की साइड। व्हाट इज दिस नोन एज सिस, इट्स ऑल्सो नोन एज कॉन्वेक्स, इट्स ऑल्सो नोन एज फॉर्मिंग। और ये बन के पूरा निकलता है, इंटरकनेक्टेड, यहां से बाहर निकलता है। व्हाट इज दैट नोन एज ट्रांस कॉन्केव। और क्या बोलते हैं इसको, इट्स मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। तो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा, विद द गोल्गी एपरेटस सिंथेसाइज प्रोटीन्स, जो बन गया है प्रोटीन्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक RER आर रिलीज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द गोल्गी एपरेटस, कहाँ से निकलेगा, इट इज गोइंग टू कम आउट थ्रू द ट्रांस। सिस किसको बोलते हैं, ये वाले को, सो दिस इज रॉन्ग। उसी को हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। द आंसर इज ट्रांस। और ट्रांस के साथ साथ मेरे पास कॉन्केव भी हो सकता था, मैच्योरिंग भी हो सकता था। नाउ द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे चलते। 99, statement is incorrect. The number of mitochondria does not correspond to the function of it. हमने बोला इनकरेक्ट आउट हियर, डज नॉट करस्पॉन्ड टू इट। अगर आपको याद है हमने बोला मोर एक्टिव द सेल, मोर द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज़्यादा हमारे पास फ्लाइट मसल्स एक्टिव पोर्शन है, जहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा है। तभी क्रेब्स साइकिल वाज स्टडीड इन द फ्लाइट मसल्स ऑफ द पिजन। सो दिस इज क्या, डज नॉट लिखा, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉमन टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। सभी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर एनर्जी देता है, यहाँ पर दोनों के पास है। Mitochondria, chloroplasts are double organelles, double membrane organelles, very correct. Mitochondria divides by fission to increase its number. Yes, ये कैसे करता है, fission करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है, तभी किसके से, प्रोकैरियोट्स के जैसे। Now the answer for the question incorrect है, तो option out here is A. Next, 100, match the following. Inclusion bodies. Inclusion body is the feature of the prokaryotes. Inclusion body के अंदर मेरे पास reserve food material है, इसके अंदर reserve food material prokaryotes में है phosphate granules, इसको हम साइनोफाइसिन granules भी बोलते हैं, और inclusion body में gas vacuoles भी है। अभी मेरे लिए मैच करने के लिए A 1 के साथ C। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इसके पास एंजाइम्स है जो तोड़ेगा, सो दिस इज ए आउट हियर, मैच द फॉलोइंग विद ए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज हैविंग व्हाट, राइबोसोम्स, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया डी आउट हियर। गोल्गी एपरेटस, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, दैट मीन्स बी आउट हियर। तो मेरे पास सी CADB, CADB. The answer for this happens to be option number C. Just check that. I hope no problem. कोई इतना कोई tough question है ही नहीं। चलिए the next 101. Read the following statements. Preserved DNA correct है, DNA है हमारे पास। Preserved DNA correct है। Preserved Cristae. Now what is Cristae now? This is the membrane of the mitochondria, outer membrane. ये inner membrane of the mitochondria enfoldings है, इसको हम बोलते हैं Cristae. What is this known as? Cristae. तो ये हमारे पास Cristae, ये भी है, करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम करेक्ट है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोमा करेक्ट है। बट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कॉमन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है? क्या क्लोरोप्लास्ट में है? दैट इज करेक्ट आउट हियर। क्या प्रेजेंस क्रिस्टी हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया में है? क्या मेरे पास में माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के क्लोरोप्लास्ट में है? नो, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम, यस, दोनों के अंदर है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोमा, नो, स्ट्रोमा इज द फीचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हमारे पास में वहां पे क्या होता है, मैट्रिक्स, so this is a wrong statement. The answer for the question happens to be the common feature for both is the second option, option number 2, that is 2 options are there. कौन कौन सा DNA है और 70S राइबोसोम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोथ सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोजोम। आई होप आपको पता सेंट्रोजोम क्या होता है। ये मेरे पास में एक सेंट्रियोल है, दूसरा सेंट्रियोल इसका परपेंडिकुलर है, साइड में मेरे पास पेरी सेंट्रियोल मैट्रिक्स है, मिलके सेंट्रोजोम बनाते हैं। चलो देखो,
बोथ सेंट्रियोल इनर सेंट्रोसोम लाई व्हाट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो परपेंडिकुलर, ये भी राइट है ये भी राइट है, सो काट दो। अब ना इन दोनों में से देखते हैं। एंड ईच ऑफ देम कंटेन्स डैश पेरिफेरल फिब्रिल्स। पहले इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है 9+0। 9+2 किसका है 9+2 इज फॉर द फ्लैजेला, वो भी यूकैरियोटिक फ्लैजेला, ओके नॉट फॉर द। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, 2 यहाँ पर आ गया। डबलेट है कि नहीं, मैंने आपको सिखाया था जब 9+2 होता है तो ये पेरिफेरल वाला डबलेट है, बट ये 9+0 है तो ट्रिपलेट है, तो ये मेरे पास ट्रिपलेट इज करेक्ट। और क्या ऑर्गेनाइजेशन है 9+0, सो दिस हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट ऑप्शन नंबर डी। अगर मेरे पास ये फ्लैजेला होता तो मेरे पास में डबलेट होता और 9+2 होता, और परपेंडिकुलर तो वर्ड डज नॉट अराइज आउट देयर, ठीक है। चलिए 103, the central part of the proximal region of the centriole is proteinaceous। अगर आपको याद है ये मैंने बताया था सेंट्रल पार्ट 0 है, सिंगलेट्स है यहाँ पर मेरे पास में, इसको क्या बोलते हैं प्रोटीनेशियस पार्ट, हब बोलते हैं। और ये मेरे पास पेरिफेरल है, कितने हैं 9 आउट हियर। ये जो 9 है इससे जॉइंट है किससे, दिस आर जॉइंट बाय व्हाट, दिस आर जॉइंट बाय द रेडियल स्पोक्स आउट हियर। तो ये रेडियल स्पोक्स है, कितना रेडियल स्पोक्स 9 है। सो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास सेंट्रल पार्ट क्या हो गया हब है, प्रोटीनेशियस है, रेडियल स्पोक्स कितना है 9 है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हैव इट। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर, सेंट्रियोल के बारे में मेरे पास कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। हब बताया था सबसे पहले गुवाहाटी में जब हमारे पास एक छोटा मॉल खुला था, हब, व्हाट इज हब नोन एज द सेंट्रल प्लेस, सेंट्रल पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो हब को याद करना सेंट्रल पार्ट ऑफ हियर, ठीक है। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इज नॉट प्रॉपर्ली पेयर्ड नहीं है। गोल्गी एपरेटस ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन तोड़ता है, लाइसोसोम्स। उसके पास एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये मेरे पास रॉन्ग हो गया, तो आंसर तो ये होना चाहिए। फिर भी आगे देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, यस 2 होते हैं, कौन सा वाला करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, आई होप आपको पता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, एटीपी बनता है in presence of oxygen, जहां पे हमारे पास ETS भी बोलते हैं, तो this is also correct. Chloroplast obviously is the site for what, photosynthesis, that is also correct. तो मेरे पास not properly matched, answer for that happens to be the A option. क्या होना चाहिए था यहाँ पे, lysosomes. चलिए match the following again है ये, it is depending upon the chromosome का structure, let's go for it. ये अगर मेरे पास में है, ये देखो ये मेरे पास सेंट्रोमियर है, ये दोनों आर्म्स है, तो दोनों आर्म्स बराबर है, तो बीच में इसको बोलूंगी मेटासेंट्रिक। तो व्हाट इज दिस, इक्वल आर्म्स, तो पहला वाला का आंसर 2 है। अगर मैंने थोड़ा सा इसको हिला दिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो अब मेरे पास क्या है, थोड़ा सा क्या, स्लाइटली स्मॉलर आर्म आउट हियर, तो वन एक्सट्रीमली शॉर्ट नहीं, वन स्लाइटली शॉर्टर आर्म देन द अदर लॉन्गर आर्म, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। अगर मैं एक्रोसेंट्रिक बनाती हूँ, ये देखो बहुत छोटा और ये बहुत बड़ा, तो दिस इज एक्रोसेंट्रिक। वन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, दैट इज 4th ऑप्शन। नाउ टीलोसेंट्रिक, दैट मीन्स मेरे पास टर्मिनल ये हो गया, सो दैट इज 1। तो देखिए 2 4 3 1, 2 4 3 1 इज द आंसर फॉर दैट। देख लीजिए कहीं पे भी 2 है ही नहीं, तो पहला वाले से ही आपको आंसर आ जाता है, दैट्स ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है ना। चलिए, which parts of the cell contains ribosome? Ribosome is an organelle present in other organelle. तो कहाँ कहाँ पे मेरे को राइबोसोम मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में है, वेरी करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में है, वेरी करेक्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, करेक्ट, साइटोप्लाज्म में तो है ही, तो मेरे पास में कहाँ कहाँ है, आई एम हैविंग ऑल द 4 ऑप्शंस विच इज करेक्ट। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट 107, चलो पढ़ते, न्यूक्लियस के बारे में लिखा हुआ है, हमने देखना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द न्यूक्लियस प्लेस एन इलैबोरेट डिस्प्लेस, नॉट प्लेस, डिस्प्लेस इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, उस फाइबर्स को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ड्यूरिंग व्हाट, क्रोमैटिन कब बनता है, इंटरफेस में, और ये क्रोमोसोम बनता कब, जब ये सेल डिवाइड करता है, तो ये राइट है, क्रोमैटिन इन द सेल साइकिल, ठीक है, मतलब इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल। द स्पेस बिटवीन द 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। नहीं, न्यूक्लियस के अंदर के मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
बाहर का स्पेस है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं इसको। क्या बोलना था? न्यूक्लियोप्लाज्म, द मैट्रिक्स, द इनर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, नहीं, फ्लेमिंग ने तो क्या दिया था? क्रोमैटिन। और न्यूक्लियस किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन। सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द न्यूक्लियर पोर्स विद इन द न्यूक्लियर एनवलप आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द बोथ द मेम्ब्रेन्स। बोथ द मेम्ब्रेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, डू नॉट मीट, बट जहां मीट करते हैं वहां पे न्यूक्लियर पोर बनता है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट आउट हियर। तो मेरा फर्स्ट वाला इज करेक्ट, ट्रू है, सभी ट्रू है। सेकेंड वाला इज रॉन्ग, तो मेरे पास यहाँ पे रॉन्ग हो गया, अभी तक डी और बी में है। तो थर्ड वाला इज रॉन्ग, तो मेरे पास ये भी रॉन्ग है, सॉरी ये भी राइट है, मेरे पास बी सी। लास्ट वाला मैंने बताया कि दिस इज करेक्ट, बट वहाँ पे इसमें रॉन्ग लिखा। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपन्स टू बी द डी ऑप्शन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन? आपको क्या सिखाया था? सिंगल मेम्ब्रेन वाला कौन है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कौन कौन है? मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मेरे पास गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है एंड वैक्यूल। तो लेट्स गो फॉर इट। माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेनस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनस है, राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस है। देख लीजिए, नॉन मेम्ब्रेनस आया तो ये 3 है यहाँ पर, डबल मेम्ब्रेन आया तो वो 2 है हमारे पास। अब मेरे पूछा सिंगल मेम्ब्रेन, द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी 4, द आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग? देखते हैं। शेल्डन एंड शॉन गेव द सेल थ्योरी, यस दैट वाज बीन गिवन बाय बोथ ऑफ देम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अभी डायग्राम बना के दिखाया, आउटर मेम्ब्रेन से, अंदर मेम्ब्रेन से तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंटेन्स वैक्यूल्स, अभी बताया 4 होते हैं, गोल्गी, एंडो एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल। Peroxisome coordinate with Golgi bodies? No, peroxisome is not a part of endomembrane system, so that cannot coordinate with the Golgi bodies. The answer for that is the wrong option. हमने पूछा कितना incorrect है, मेरे पास एक ही incorrect है, and that is option number B. That is so. Clear है? चलिए। A plant cell has, अब इससे easy question क्या दे सकती थी? Rigid chitinous cell wall, ये किसके पास होती है? फंजाई के पास। Plants are having cellulosic cell wall, so this is a wrong statement out here. Centrioles, plant cell has centriole for cell division. No centriole is present in the plant cell except for very lower plant cells में 1-2 में होता है, otherwise we don't have it. वो उसको भी क्या बोलते हैं? basal body. Absence of the cell membrane, सभी living organisms के पास cell membrane होती है, so that is also a wrong statement. A large central vacuole, yes, plants are identified by the presence of central vacuole which occupies 90% of the volume out here. The answer for this happens to be the D option. Let's proceed with 111. Look at this diagram. You are supposed to label that. देखिए सबसे पहले A, ये देखो A कहाँ पर है? ये मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर गोल गोल, व्हाट इज दिस नोन एज? राइबोसोम्स। ये भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है। तो पहला वाला ये हो गया। बी देखिए क्या है? दिस इज बी आउट हियर, ये वाला बी है। व्हाट इज दिस? न्यूक्लियस है, दिस इज करेक्ट। ये न्यूक्लियर पोर होने से तो यहाँ पर होना चाहिए था, तो दिस इज रॉन्ग आउट हियर, तो ये न्यूक्लियस करेक्ट है। सी मेरे पास देखो, इसको बोलते हैं व्हाट इज दैट नोन एज? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। फिर मेरे पास क्या आ गया? डी ये है न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, मेरे पास न्यूक्लियर पोर। ई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो स्मूथ है, इसमें कोई मेरे पास राइबोसोम नहीं है, एंड मेरे पास आंसर आ गया। देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप देखो ए वाला जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अगर आपको कंफ्यूजन भी हुआ, बी इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो सकता, ये चला गया। यहाँ पे देखो ए इज न्यूक्लियर पोर, ऑब्वियसली ये न्यूक्लियर पोर नहीं हो सकता, तो ये दोनों करेक्ट, आपको बिल्कुल ही रॉन्ग पता लग जाता है यहाँ से। तो आंसर for that happens to be the A option. चलिए देखें 112 assertion. Chloroplast, mitochondria, peroxisomes are not considered part of endomembrane system. करेक्ट है। कौन है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का? वही चारों के चारों, तो ये राइट है लाइन। फंक्शंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद, ये चारों के साथ, यस दिस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, तभी वो उसका पार्ट नहीं है। देयरफॉर बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन आउट हियर। द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 113 assertion.
interphase nucleus, interphase means resting phase, preparatory phase, has loose distinct network of fibers. What is that known as? Chromatin. Correct statement है, chromatin होता है. Chromosome कब बनता है? That chromatin condenses during the cell division. तो chromosome during the cell division, chromatin during the interphase. Correct है. Reason, chromatin contains RNA है उसके पास, DNA है उसके पास, histone है उसके पास, non-histone proteins are absent. No, हमारे पास हायर लेवल में यहाँ पर हमारे पास में जब कॉइलिंग होती है तो मेरे पास नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन भी होता है विच इज नोन एज एसिडिक प्रोटीन. क्रोमेटिन का भी पार्ट चारों है, क्रोमेटिड का भी पार्ट चारों है एंड क्रोमोसोम का भी पार्ट चारों है. तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो ऑब्वियसली असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट. आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. नेक्स्ट 114. इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा घुमा हुआ है. इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, दैट मीन्स ये मेरे पास बैक्टीरिया है, ये मेरे पास इसका क्या है, मेरे पास इसका जीनोम है. डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है. करेक्ट है. स्मॉल सब आउटसाइड द जीनोमिक इज in addition to this genomic DNA, ये genomic है. outside to this we are having other genomic DNA. what is that known as? plasmid. ये है, इसको मिनी क्रोमोसोम भी बोलते हैं. this is plasmid, this is genomic DNA. ठीक. the plasmid DNA confers certain unique, correct है, genotypic characters. जीनोटाइपिक तो जीनोम वाला ही करेगा, ये क्या करेगा? फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. वन कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक है बट ये फिनोटाइपिक है, जीनोटाइपिक नहीं है. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. The plasmid DNA of bacteria is used to monitor bacterial transformation with the foreign DNA. करेक्ट है, लाइन है एनसीईआरटी की. A specialized differentiated form of cell membrane is called as mesosome. आई होप आपको पता है ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन के लिए अंदर में इन्वेजिनेशंस है. What are these known as? mesosomes, which is a site for what? respiration 2. इसके पास में क्या होता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है. तो यहाँ पे मेरे पास गलत क्या हो गया? यहाँ पे जीनोटाइपिक. अगर आपको ये पकड़ा नहीं गया तो रीड द अदर लाइन्स, फिर आपको समझ में आएगा. एलिमिनेट करके जाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट 15. देखिए इसको, रीड द स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, कितना इसके पास प्रोटीन है? 52. कितना लिपिड्स है? द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज protein and the lipids, which is correct out here. The ratio of the protein varies in different types of cells. Yes, ये डिफर करता रहता है, लिपिड प्रोटीन का रेशियो डिफर करता है. करेक्ट लाइन है. तो यहाँ पे मेरे पास पूछा both the statements are true. Yes, both the statements are true. The answer for 115 happens to be the A option. चले 116. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. मैच्योर सीव ट्यूब फ्लोएम का पार्ट है. possess a conspicuous nucleus, a very distinct nucleus and usual cytoplasmic organelles. No, क्या बताया था? A mature sieve tube is enucleated. That means nucleus था, अब ये चला गया तो it's known as enucleated. So this is a wrong statement. Microbodies are present both in the plants and animal cell. Yes, लिखा हुआ है microbodies out here. हमारे पास microbodies लास्ट एकदम 2 लाइन का आंसर लिखा है. मैंने आपको सिखाया था ग्लाइऑक्सीजोम, स्पेरोजोम से स्पेरोक्सीजोम सब भी microbodies है. The perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm, which is correct out here. Barrier है यहाँ पर. Nucleopore acts as passage. किस चीज़ के लिए passage? Protein and the RNA molecule between both the direction. अंदर से ये मेरे पास ऐसा है, यहाँ से बाहर भी जाएगा, यहाँ से अंदर भी जाएगा, तो both direction में RNA और protein जाते हैं. Which is a correct statement out here. तो क्या wrong हो गया? यहाँ पे nucleus नहीं है, enucleated है. The answer for the question happens to be the A option. ध्यान से देखना, enucleated सब वर्ड्स आपको सिखाया गया है. अन्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड सब दिखाए. चलिए, not correct out here. Hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH. Yes, low pH पे active होता है, which is known as acidic pH. Correct है. Lysosomes are membrane bound structure. Yes, single membrane है. Lysosomes are formed by the process of packaging. Yes, packaging से बनता है. But कौन बनाता है? Endoplasmic reticulum नहीं. कौन बनाता है? Golgi apparatus या Golgi bodies बनाता है. Endoplasmic reticulum सिस साइड में देता है Golgi bodies को. वो उसको क्या करता है? Modify करता है, पैकेज करता है. कहाँ से निकालता है? From the trans side of it. और ये कौन करता है? Golgi bodies. So this is the wrong answer out here. Lysosome has numerous
न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यस उसके पास न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमने पढ़ा है क्या है हमारे पास, ये सारे हाइड्रोलाइटिक प्रेजेंस ऑफ वाटर काम करते हैं। लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, सेलुलोज को तोड़ने वाला सेलुलेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपन्स टू बी द सी ऑप्शन। चलिए 118, टू स्टेटमेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, वेरी करेक्ट है। The membrane of the chloroplast has single circular DNA, few RNA molecules and this. क्या है यहाँ पर, किसने पकड़ा इसमें, मेम्ब्रेन नहीं, क्या है मेरे पास में, अगर ये होता क्लोरोप्लास्ट होता तो मैं स्ट्रोमा लिखती, अगर ये होता माइटोकॉन्ड्रिया तो मैं मैट्रिक्स लिखती, बट ये जो वर्ड है यहाँ पर RNA molecules, इन्होंने वैसे कहाँ पर लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, मैंने सबको कंफ्यूजन दूर कर दी, मेम्ब्रेन लिख दिया, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, कहाँ पर होना चाहिए था, स्ट्रोमा में या मैट्रिक्स में। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट आउट हियर। Statement 1 is true and statement 2 is false. The answer for the question happens to be the A option. चलिए 119 match the following. G1 मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मेरे पास cells contain initial amount, yes शुरू का amount of DNA है which is 2C, yes A का आंसर 4 हो गया। G2 का आंसर, G2 क्या कर रहा है मेरे पास, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यहाँ पे प्रोटीन्स बनाएगा जिससे कि मेरे पास माइटोसिस के लिए प्रॉपरली काम हो जाए। सिंथेसिस फेज, दैट मीन्स द S फेज, DNA denoted by as 2S increases to 4C, 2C increases to 4C, that is the second option. G0, quiescent stage of cell cycle is known as G0, this is the first part out here. So 4, 3, 2, 1, this is 2, 1 out here. So 4, 3, 2, 1, answer for that happens to be the B option. आई होप ये सब कुछ आपको आता है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। What would be the amount of DNA? DNA को हम लोग किससे देते हैं, C से, and number of chromosome N से डेजिग्नेट करते हैं। In an animal cell, after completion of, जब उसने क्या कंप्लीट कर लिया, S phase, S phase में मेरे पास क्या होता है, DNA duplication occurs, but do I have the chromosome duplication? No। तो DNA मेरे पास ओरिजिनली क्या बताया, 2C DNA है, 2N ये है, तो DNA डबल हो जाएगा तो मेरे पास 4C है, करेक्ट, बट मेरे पास क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होते, सो दिस शुड बी सो, द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द C ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ, सेल ग्रोथ को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्यूरिंग विच अकर्स ड्यूरिंग द सेल साइकिल। सेल ग्रोथ कब हो रही है मेरे पास, ड्यूरिंग द सेल साइकिल, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं हो रही है, कहाँ पर हो रही है मेरे पास में, कब होती है, ड्यूरिंग द इंटरफेस में। So this is not a correct statement. DNA synthesis occurs only during a specific stage in the cell cycle. Yes, DNA synthesis S phase में होती है. This is a specific stage. Very correct. The events of cell cycle are under genetic control. Obviously genes control कर रही है, DNA duplication हो रहा है. This is also correct statement. तो अभी हमारे पास क्या हो गया, पहला वाला cell cycle नहीं होना चाहिए था, interface होना चाहिए था. 1 is false, 2 and 3 are true. That the answer for the question happens to be the A option. चलिए 122. Identify from the given statements. Nucleocytoplasmic ratio in the organisms are restored by mitosis. आपको बताया एक सेल जो है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करता है इंटरफेस में, अब इसका साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होने लग गया है, बट उसको रीस्टोर करता है कौन, माइटोसिस। अ करेक्ट स्टेटमेंट आउट हियर। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। कौन रिप्लेस करता है, माइटोसिस करता है या माइटोटिक डिवीजन करता है। करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ ऑफ दीस आर ट्रू। The answer for that happens to be the C option. 123. What the difference would indicate the early prophase and late prophase? अगर आपको याद है डायग्राम बना हुआ है NCERT में। Early prophase, nucleolus and nuclear membrane out here are present. Correct है, present है यहाँ पर. Nucleolus, nuclear membrane are absent, which is also correct out here. यहाँ पे disappear हो जाते हैं. This is a correct statement out here. ठीक. Chromosomes are highly condensed. प्रोफेस में तो कंडेंसेशन हो रही है, यहाँ पे कंडेंस नहीं होते हैं, देयर इज नो कंडेंसेशन, यहाँ तो कंडेंसेशन कर रहा है, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट. सेंट्रोजोम मीन्स जहाँ पे सेंट्रियोल है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, सेंट्रोजोम भी प्रेजेंट. दिस इज प्रेजेंट आउट हियर. करेक्ट है. न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोजोम्स आर एब्सेंट. न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट बट सेंट्रोजोम तो प्रेजेंट होता है बिकॉज वहाँ से तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं. सो दिस इज करेक्ट आउट हियर. दिस इज रॉन्ग. तो ये मेरे पास रॉन्ग हो गया. ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस आर नॉट ऑब्जर्व. ठीक है, यहाँ पर नहीं है, रॉन्ग. यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं, यहाँ पर आर ऑब्जर्व उल्टा लिख दिया इसने. देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि अर्ली प्रोफेस में है और लेट प्रोफेस में नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आउट हियर. ठीक है, चलिए 124 करेक्ट ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू लेप्टोटिन. लेप्टोटिन प्रोफेस का फर्स्ट पार्ट है. लेप्टोटिन, जाइगोटिन एंड ऑल. पेकाइटिन इज अ लास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड स्टेज ऑफ प्रोफेस. लास्ट नहीं है, फर्स्ट होना चाहिए था. शॉर्ट लिव्ड तो करेक्ट है, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इट बिगिंस विद द प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज अकम्पनीड. नहीं, यहाँ पे अकम्पनिश नहीं हुआ, ये कर रहा है. यहाँ पे कॉम्पैक्शन इज अकम्पनिश, यहाँ पे नहीं, ये करता जा रहा है. जबकि हमारे पास कब होता है खत्म? मेटाफेज में. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है ना. क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. यहाँ पे क्रोमोसोम हमारे पास विजिबल होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, तो ये करेक्ट लाइन है. ठीक है ना. लाइट माइक्रोस्कोप में लिखा हुआ है लेप्टोटिन, जाइगोटिन. इट्स फॉलोड बाय जाइगोटिन विच इज अगेन करेक्ट. तो मेरे पास 1 and 2 इज रॉन्ग एंड 3 and 4 इज करेक्ट. द आंसर फॉर दैट इज 3 and 4 इज करेक्ट. 1 and 2 इज इनकरेक्ट. द आंसर फॉर दैट हैपन्स टू बी द सी ऑप्शन. Meiosis ensures the production of dash phase in the life cycle of sexually reproducing organism. Meiosis होगा तो reduction होगा, reduction होगा तो मेरे पास haploid phase आएगा. Haploid correct है. आगे in sexually reproducing organism, whereas fertilization is what? Diploid phase. The answer for that happens to be the B option. Next, after meiosis 1 the resultant daughter cells have. चलिए देखिए, अगर मेरे पास एक है सेल जिसके पास 2C अमाउंट ऑफ DNA है. जब उसने क्या किया, उसने जब S कर लिया, एंड हो गया, एंड ऑफ S में क्या किया, इसको 4C बना दिया. फिर G2 में कितना है? 4C. मियोसिस किया 1, मियोसिस कर दिया तो कितना? 2C आ गया. मियोसिस 2 दैट मीन्स डॉटर सेल्स में कितना आ गया? C आ गया. अब देखिए, सेम अमाउंट ऑफ DNA एज इन द पेरेंट सेल एट द एंड ऑफ दिस. यहाँ पर मैंने पूछा पेरेंट सेल में तो 4C था. दिस इज रॉन्ग. ट्वाइस द अमाउंट ऑफ DNA इन कंपैरिजन टू द हैप्लॉइड गैमेट्स. हैप्लॉइड का NC है तो यहाँ पे हमारे पास डिप्लॉयड है. करेक्ट है लाइन आउट हियर. दैट मीन्स इसमें C है डॉटर सेल में और यहाँ पे मेरे पास क्या है? 2C है. करेक्ट. सेम अमाउंट ऑफ DNA एज कंपेयर टू द हैप्लॉइड गैमेट. नो, ये C और वो 2C है. रॉन्ग. 4 times अमाउंट ऑफ द DNA विच इज रॉन्ग आउट हियर. तो मेरे पास आंसर है twice the amount of DNA in comparison to the haploid gametes. The option number B. नेक्स्ट चलिए 127 फॉलोइंग आउट हियर. सिंसिशियम यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ? कौन है? अकर्स इन द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट. दैट मीन्स नो साइटोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस. ऑप्शन नंबर 2. सेल प्लेट फॉर्मेशन कब होता है? साइटोकाइनेसिस में. किस में होता है? प्लांट सेल में. सो दिस इज व्हाट? ऑप्शन नंबर 3. सेल फरो किस में होता है? इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस में. किस में? एनिमल सेल्स. सो दैट इज ऑप्शन नंबर 1. So 231, this is the answer for the question. I hope it's clear to everybody. The answer is B option. चलिए आगे देखते हैं. What is it? 128. In many cases, the chromosome do undergo some dispersion. They do not reach an extremely extended state of the interphase. What is this? What am I talking about? जब मेरे पास टेलोफेज 1 हो गया, इंटरकाइनेसिस होना है, फिर से उसने प्रोफेज करना है, तो यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो रहा है. पूरा डीकंडेंसेशन नहीं होता है. सो कहाँ की बात करें? दिस इज अकरिंग ड्यूरिंग व्हाट? टेलोफेज 1, बिकॉज वो फिर से रेडी होने वाला है फॉर द meiotic 2 division out here. The answer for the question happens to be the D option. Next 129. Which of the following is incorrect about meiosis? 2 cycles of DNA replication occurs. जो भी हो, DNA replicates only 1. इंटरफेस में करता है, इंटरकाइनेसिस में नहीं करता है. So this is incorrect out here. Formation of 4 haploid cells. Yes, हमारे पास meiosis के बाद 4 haploid cells बनते हैं. करेक्ट है. तो मेरे पास ये रॉन्ग है, मतलब ये आंसर होगा. होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग अकर्स आउट हियर. यस, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं, वही बाद में सेग्रीगेशन करते हैं. क्रोमोसोम नंबर्स रिड्यूस टू हाफ इन द एंड. करेक्ट स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट आउट हियर. दिस इज ए ऑप्शन. ठीक है ना. चलिए
130. What happens during the anaphase 1 of the meiosis? आपको पता anaphase 1 मतलब meiosis 1 के बारे में बात करें, हमारे पास segregation होता है, separation होता है किसका? Sister chromatids of the chromosome separate. This is anaphase or anaphase 2. Sister chromatids separate or mitosis में. Chromosome do not separate. नहीं, anaphase is known for the separation or segregation of the chromosomes. Homologous chromosome separate. Correct. This is you are going to have this is separating during the anaphase 1. Non-homologous chromosome separate. No, it is homologous chromosome which separates during anaphase 1. The answer for that happens to be the C option. चले 131. The metaphase chromosome is made up of. Metaphase में मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ये देखिए ये क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमेटिड है, ये सेंट्रोमियर है, दोनों के दोनों क्रोमेटिड अटैच टू सेंट्रोमियर. Two non-sister chromatids are held by the centromere. No. Sister chromatids हैं. 4 sister chromatids which are held together by the centromere. No. 2 sister chromatids. 2 sister chromatids which are held together by the centromere. The answer for that happens with C option. 4 non-sister chromatids nahi. 2 sister chromatids out here. The answer for the question happens to be the C option. 132. What will be the amount of DNA in meiosis 2 if the product meiosis 2 product if myocyte, what is myocyte? A diploid cell contains 30 pg DNA in G1. तो देखो ये मेरे पास twice n है, G1 में DNA कितना आ गया, इसके पास 30, G2 में कितना आ गया 60, M1 में कितना आ गया 30, M2 में कितना आ गया 15. The answer for the question happens to be 15 pg DNA. Pg stand for picogram. The answer for the question happens to be the C option. आगे देखिए 133. In meiosis, haploid cells are formed. Yes, meiosis में haploid cells बनते हैं. During this process, the nuclear membrane nucleolus disappears. कितनी बार disappear करता है? Prophase 1 के end में, Prophase 2 के end में. That means 2 बार करता है. That is the answer for the question happens to be the B option. ठीक है? चलिए. 134. If at the end of meiosis, कितना daughter cells are formed? 4, which have 4 chromosomes out here. How many chromosomes were present in the mother cell? Obviously इसके अंदर 4 chromosome है. meiosis के बाद में mother cell में कितना था? double. That means उसने meiosis करके क्या बना दिया? Answer. That means half of it because it's known as reductional division. The answer is 8. चलिए देखते हैं 135. लेट्स गो फॉर इट. इसको देखिए आंसर यहाँ पर मेरे पास ये सेल है, डिप्लॉयड है. हमने डिप्लॉयड सेल है तो ये क्या करेगा? डिवीजन करेगा. व्हाट इज दिस नोन एज meiosis 1. कितना डॉटर सेल्स बना दिया? 2. दोनों के दोनों हैप्लॉयड बिकॉज इट्स नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन. अब ये क्या किया? यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स हो गया. meiosis 2. व्हाट इज दिस नोन एज? इक्वेशनल डिवीजन. तो लेट्स गो फॉर द आंसर. meiosis 1 पहला वाला का करेक्ट है. यहाँ पे क्या बन गया? n. और यहाँ पे क्या किया इसने? meiosis 2 और क्या बन गया? n. That means D भी n है, ये भी n है. The answer for that happens to be the D option. I hope सबने बहुत अच्छा पेपर किया होगा. जब आपको नंबर अच्छे आएंगे आप खुद ही पॉजिटिव हो जाओगे, खुद ही मोटिवेट हो जाओगे. That will help you to study more and more and finally will help you to get a seat in the medical college, good medical college. All the best.